बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का आज हम चौथा मॉडल पढ़ने जा रहे हैं। हम इसमें अपने पहले 3 मॉडल्स को कवर कर चुके हैं, जिसमें टॉप डाउन मॉडल जिसको हम सोशल प्लानिंग कहते हैं, इनसाइड आउट मॉडल सोशल एक्शन एंड बॉटम अप मॉडल जिसको हमने लोकल कम्युनिटी की डेवलपमेंट का जो मॉडल हमने किया था। आज जो हम मॉडल करने जा रहे हैं वो कम्युनिटी पार्टनरशिप और कोalition के मॉडल है। A collaborative partnership is a reciprocal partner relationship between two or more people with a shared goal in mind. Collaborative partnerships are often dynamic, characterized by constant change, activity, or progress. In community organization, collaborative partnership have common themes with a key difference from other forms of community organization. यहाँ पर हम community partnership का मतलब है कि यहाँ पर हम collaborate करते हैं different organizations के अंदर, different जो वहाँ पर काम कर रही होती हैं, दो के उनके themes जो हैं वो एक होते हैं, एक ही उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनके से जो आगे थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं, उनके काम करने के तरीके में डिफरेंस हो सकता है या उनके थोड़े से विजन में फ़र्क हो सकता है, लेकिन वो कोलैबोरेट करते हैं कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए और उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। There are many hybrid models that combine element of three approaches जो हम पीछे से पढ़ चुके हैं, जो पहले 3 मॉडल पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, community partnership or coalition combine elements of social planning and locality development when people who share common concerns such as child well-being or substance abuse come together to address them. यानी जब हम इस किस्म का कोई प्रोग्राम वहाँ पे शुरू करना चाहते हैं कम्युनिटी के अंदर और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने पिछले जो हमने मॉडल्स पढ़े थे उनकी कुछ चीज़ों को कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप सब्सटेंस अब्यूज़ के लिए कोई प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं, तो आप सोशल प्लानिंग को भी यूज़ कर सकते हैं कि कुछ उसके कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, और लोकेलिटी डेवलपमेंट मॉडल को भी आप यूज़ कर सकते हैं। Community coalitions tends to tackle larger social issues by bringing together a representation of community, citizen, and organization, both public and private, situated in a way to address large social problems and multiple levels of the community. Like collaborative partnership, community coalitions have become more popular in recent years following cutbacks for funding for social services, therefore putting pressure on communities to do more with less. यहाँ पर फंडिंग को जो है वो कट किया गया है पिछले कुछ सालों के अंदर, और कम्युनिटी से कहा गया है कि जितनी उनको फंडिंग दी जाती है या जितनी उनको हेल्प प्रोवाइड की जाती है, वो उसमें रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कम्युनिटी को फ़ायदा पहुंचा सकें। तो इसमें ये बिल्कुल वाज़ेह आपको नज़र आता है कि हमें डिफरेंट मॉडल्स को कंबाइन करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें जो है आपको सोशल प्लानिंग से लेनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें आपको सोशल एक्शन से लेनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें आपको जो है लोकेलिटी डेवलपमेंट से लेनी पड़ेंगी, ताकि आप अपनी कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सके कम से कम रिसोर्सेज के अंदर। तो इसमें लोगों की पार्टिसिपेशन, लोगों की इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। The goal of many coalition is the change community condition, specific program, policies and practice that protect against or reduce risk of these concern. These models and their variation may be implemented at local, state, regional or even broader levels. Given the organizational structure of community coalitions, members often agree upon a mission, vision, and set of shared values, all of which help coalitions write and implement action plans. These action plans help guide the coalition in their work, whether the work is carried out by the coalition itself or by the affiliated organizations. Not only do coalitions help strengthen citizen participation, a staple of community psychology, they hold the potential to change policy at local and state level.
एंड इंक्रीज कम्युनिटी रिसोर्सेज। तो इसके अंदर हम डिफरेंट, इस मॉडल के अंदर हम प्रीवियस मॉडल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को इकट्ठा करते हैं, जो वहाँ पर कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, वो कोलैबोरेट करती हैं और पार्टनर्स बनती हैं, और अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए, वहाँ के लोगों के को इस्तेमाल करते हुए, वहाँ के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कम से कम वक्त में, कम से कम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो ये था आज का मॉडल। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसको समझने में आसानी रहेगी। थैंक यू वेरी मच।